Alright class, today we are going to start a reading test. This is from the book 16 and the passage 1. It has two types of questions. Why we need to protect polar bears. The first type of questions are true, false, not given, while the second type of questions are fill in the blanks. The question is saying complete the table below. So you can see there are two types of questions and we are going to start with true, false and not given. As you know, how can we understand true, false and not given statement? Do you know or not? Yes, sir. If the statement agrees with the passage, with the information that is provided into the passage, the statement is true. But if the statement is opposite from the information that is provided into the passage, the information is false. If they haven't talked about that thing, the information is incorrect or half, or maybe it's true and they added new words that may be adverb or anything else, then the statement is not given. How could we identify the statement is not given? We can identify by three ways. Number one is they may change the tense. Number two, they may add adverb. And number three, they can add comparison. In academic reading, 90% comparisons are not given. While the 10% chances are there, they are true. Okay? So in GT, it's usually happen that 90% the comparisons are true and the 10% chances are there, they might be not given. But in academic reading, the statement is reversed, and if the question statement has comparison, you can understand that it's not given. But the chances are 10% it might be true or false. But the 10% chances are there, it might be true or false. Otherwise, 90% chances are there, the statement is not given. So we have only 20 minutes to complete the passage. So it's like impossible task. 13 questions are there and we have 2,700 words. We have to focus on one things. So what we will do, we will make keywords. What we will do, we will make keywords. Then we will scan these keywords into passage to find the information, either it's true or false or not. Okay? We will first make the keywords of question, then we will dive into the passage. So let's get started. This passage is about the polar bears, and the question number 1 is saying polar bears, alright, suffer from various health problems. इसको हम चंक्स में डिवाइड करेंगे. बेहतर यह है कि आप जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की उसको चंक्स में व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, ये वाले क्वेश्चन जो है ना खुद से करें कि ये क्वेश्चन एक्चुअली आपसे पूछ क्या रहा है. वो कहता है पोलर बेयर्स जो है वो सफ़र करते हैं, मुब्तला होते हैं किस चीज़ में, वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स में. किस वजह से? ड्यू टू की वजह से. किस वजह से? टू द बिल्डअप. उनके अंदर जो है ना फैट अंडर देयर स्किन, उनकी स्किन के अंदर जो फैट है उसकी वजह से उनके अंदर वेरियस हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं. ओके, कीवर्ड्स बन गए. फिर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2. आई ऑलवेज रेकमेंड कि आप दो स्टेटमेंट्स को रीड आउट करके फिर पैसेज को पढ़ना शुरू करें. बिकॉज ऐसा होता है समाओ हम पैसेज को रीड आउट कर रहे होते हैं और स्टेटमेंट जो होती है वो नॉट गिवन होती है, ठीक है, और उसमें सारा आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है. सो इट्स बेटर कि आप दो स्टेटमेंट्स पढ़ लें और उसके बाद आप पैसेज में डाइव इन करें आंसर को फाइंड आउट करने के लिए. स्कैन करेंगे पहले हम. स्कैन करने के बाद जब हमें कीवर्ड्स मिल गए तो हम उसकी थॉरो रीडिंग करेंगे. ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं. पहले स्कैनिंग होती है कीवर्ड्स की. एक लाइन में हमें अगर तीनों कीवर्ड्स मिल गए तो हम थॉरो रीडिंग करेंगे ताकि हमें आंसर पता चले कि उससे प्रीवियस लाइन में क्या हो रहा है और उससे अपकमिंग लाइन में क्या हो रहा है और स्टेटमेंट क्या हो रही है. ठीक है. सो सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी डन बाय, किन्होंने की स्टडी? लियो एंड हिज कलीग्स, और उसके कलीग्स ने कंपेयर्ड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ polar bears. ठीक है, the study done by, no words, no helping verbs is there.
इसके साथ कोई भी उसने नहीं इस्तेमाल किया, कोई क्या इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब, हालांकि थर्ड फॉर्म है, डन के साथ कुछ ना कुछ हमारे पास आना चाहिए। खैर, सो दोनों क्वेश्चंस की समझ आ गई क्या कह रहे हैं। पहले क्वेश्चन में क्या रहा था, पोलर बेयर जो है वो क्या है, किस चीज से, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोलर बेयर्स आर बीइंग इंक्रीजिंगली थ्रेटन्ड बाय द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, बट देयर disappearance could have far-reaching consequences. They are uniquely adapted to the extreme condition of the weather. Okay, we haven't got human with comparison level of the adipose tissues would be considered obese. ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ पूरा पढ़ देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि इसमें हम कर क्या रहे हैं। वो कहता है पोलर बेयर्स आर बीइंग इंक्रीजिंगली, तादाद बढ़ रही है, थ्रेटनिंग, खतरा है उनकी जान को, बाय द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट के चेंज होने से उनकी हेल्थ को असर हो रहा है उनकी हेल्थ पे, बट देयर डिसअपीयरेंस, लेकिन उनका डिसअपीयर होना, मंजर से गायब हो जाना, could have far-reaching consequences. They are uniquely adapted to the extreme condition of the arctic circle, where the temperature can reach 40 Celsius. One reason of this is that, इसकी एक रीजन ये है कि वो एक्सट्रीमली जो कोल्ड कंडीशन है उसको बेयर कर लेते हैं, उसको अडैप्ट करने की उनमें कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, वो कहते हैं इसकी एक रीजन तो ये है कि इज दैट दे हैव अप टू 11 सेंटीमीटर ऑफ द फैट अंडरनीथ देयर स्किन। सो वी हैव गॉट द लाइन कि उनकी स्किन के नीचे 11 मीटर मोटी स्किन होती है, फैट की लेयर। ह्यूमन विद कंपैरेटिव लेवल्स, अगर ह्यूमन में इतना लेवल हो ना इसका ऑफ एडिपोज टिश्यू वुड बी कंसीडर्ड obese, मोटा समझा जाता है। ठीक है, एंड वुड बी लाइकली टू सफर फ्रॉम डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। इंसान में हो तो उसको हार्ट अटैक, खुदा ना खास्ता दिल की बीमारियां या शुगर होना शुरू हो जाती है। येट क्या है, एक कंजंक्शन है, जैसे कंजंक्शन आ जाती है इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है अब चेंज होने जा रही है। वो कहता है इंसान के अंदर हो तो इंसान में क्या हो, इंसान तो दिल और शुगर की बीमारियों से सफर करे, उसमें मुब्तला हो जाए। लेकिन कहता द पोलर बेयर एक्सपीरियंसेस नो सच कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन पोलर बेयर्स को ऐसी कोई बीमारी लाभ नहीं होती उनकी स्किन की वजह से। जो स्किन के अंदर टिश्यूज हैं वो उनको कोई भी किस्म की बीमारी नहीं देते। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, पोलर बेयर्स सफर फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू द बिल्टअप ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। इंसान करता है सफर, पोलर बेयर्स नहीं करते। फॉल्स है, इंसान करते हैं, पोलर बेयर तो करता ही नहीं है। मैंने आपको कहा कि ह्यूमन बीइंग्स में अगर वो कहता है एडिपोज हो तो उसको हार्ट के और डायबिटीज के इश्यूज आते हैं। येट ने स्टेटमेंट को किया चेंज, तजाद आ गया, अब उसकी ऑपोजिट आ गई स्टेटमेंट। वो कहता है लेकिन इंसानों में ऐसा कोई मसला नहीं, उनमें सॉरी पोलर बेयर्स में। जो लुई और उसके कॉलीग्स ने कंपेयर किया दो ग्रुप्स को, देखिए क्या है द स्टडी। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है पहली लाइन है, a study 2014 study by the Loing and his colleagues shed light on this mystery. They compared the genetic structure of the with that of their closest relatives from a warmer climate, the brown bears. किनके साथ उन्होंने उसका किया कंपैरिजन, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ किया है, या उसी की तरफ का था वो, लेकिन वो था किसी और वार्मर क्लाइमेट में। डिफरेंट ग्रुप्स तो नहीं थे ना, एक ही ग्रुप था, एक पोलर बेयर है तो दूसरा ब्राउन बेयर है जो कि वार्मर क्लाइमेट में रहता है। ये कोल्डर का था और वो वार्मर, दो ग्रुप्स का ही कंपैरिजन हुआ, डिफरेंट का नहीं हुआ। तो इसका मतलब है ये हो गया फॉल्स, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट देखिएगा, Louis and his colleagues were the first researchers
to compare the polar bear and the brown bear genetically. अब ये polar bear और कौन सा ग्रुप है? ब्राउन बेयर्स होना तो इस स्टेटमेंट को ट्रू चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये कुछ और है स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें उन्होंने ऐड कर दिया एडवर्ब फर्स्ट ग्रुप, दे वर इन द फर्स्ट ग्रुप. हैवंट वी गॉट एनीथिंग अबाउट दे वर द फर्स्ट ग्रुप? रीड आउट कीजिए स्टेटमेंट को. इसी पैराग्राफ में हम कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं पाते. तो वो पहला ग्रुप था रिसर्चर का, दूसरा था, हम इतना कह रहे हैं कि रिसर्चर का ग्रुप था जिन्होंने तहकीक की, लेकिन पहले ग्रुप में थे, दूसरे में थे. इस बारे में कोई भी हमें बात नहीं मिल रही. तो मैंने कहा था कि अगर एडवर्ब ऐड करते, कंपैरिजन ऐड करते, तो वो क्या होगा? नॉट गिवन. द स्टेटमेंट इज नॉट गिवन. लेकिन वो फर्स्ट रिसर्चर का ग्रुप नहीं था, उन्होंने जो मर्जी किया, लेकिन रिसर्चर के ग्रुप से पहले उसने फर्स्ट रिसर्चर्स का ग्रुप बना दिया. हमें नहीं पता उससे पहले कोई रिसर्च हुई है इन दोनों पे कि नहीं हुई, ऐसा तो हमें पैराग्राफ से कुछ नहीं मिल रहा. आपने अगर पीएचडी भी बेटे की हुई है ना किसी सब्जेक्ट में, और वो आपका सब्जेक्ट जो है वो आ जाता है उसी में आपके आईएलटीएस के पेपर में, तो हमने अपना पर्सनल नॉलेज इस्तेमाल नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये प्लम कलर की पेंसिल है, आपको पता है पेंसिल है, लेकिन आपने किसी ने एक पूरा स्ट्रक्चर लिखा है, पैराग्राफ लिखा है, उसमें पेंसिल मेंशन की है मेरे हाथ में, लेकिन उसका कलर मेंशन नहीं किया. आपके पास इंफॉर्मेशन है कि प्लम कलर है, आपको नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि पैसेज में किसी ने जिक्र ही नहीं किया, तो क्वेश्चन में 10 दफा जिक्र उसका आ रहा है, आपने उसको नॉट गिवन ही करना है. हमने पैसेज के अकॉर्डिंग चलना है, अपना पर्सनल नॉलेज इस्तेमाल नहीं करना. बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए तो आर्ट्स का पेपर नहीं बनता ना. रिसर्चर्स है, रिसर्च किसी भी चीज़ पे हो सकती है, एस्ट्रोनॉमर्स भी हो सकते हैं, वो किसी उसने की हो, किसी बीमारी पे की हो, उन्होंने आर्टिकल लिखना होता है ना पीएचडी वालों ने, वही आर्टिकल बेसिकली आपके पब्लिश होते हैं उसमें मैगजीन्स में. उन मैगजीन से आर्टिकल्स को लेकर आईएलटीएस का पेपर बनता है, राइट. ये 7 to 6 इनके फिक्स जो है मैगजीन्स, उनमें आर्टिकल्स पीएचडी स्कॉलर्स के प्रिंट होते हैं, वहाँ से लेकर आपका एक आईएलटीएस का पैसेज बन जाता है. ठीक है, पीछे रेफरेंसेस दिए हुए हैं, उन्होंने सारे एक्नॉलेजमेंट जो है बुक के पीछे दी हुई है कि उन्होंने ये पैराग्राफ या ये पैसेज कहाँ से लिया है, किस आर्टिकल से लिया है. ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन वो आपको पूरी वेबसाइट पे दे रहे हैं. जो भी ये रिसर्चर्स हो, आप लोग जो भी हो थीसिस कर रहे हो, आप लोग भी तो रेफरेंसेस ऐड करते हो ना, बताते हो कि हमने रेफरेंस कहाँ से लिया है. इन्होंने जब यूज करना है तो ये भी रेफरेंसेस पीछे दे रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले. ठीक है, ये पीछे है इसके. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Polar bears are able to control their levels of bad cholesterol by genetic means. ठीक है, polar bears क्या करते हैं, वो कंट्रोल कर सकते हैं इसको, बैड कोलेस्ट्रॉल को. कैसे? जेनेटिक मीन्स. फाइंड आउट कीजिए से. Second paragraph, APOB, which reduce level of the low density, a form of the bad cholesterol in humans. Mutation of these genes are associated with the increased risk of the heart. Polar bear may therefore be an important study model to understand heart disease in human. So the करता है, उसको कंट्रोल कर रहा है. The statement is number 5 is female polar bears. Female जो polar bears हैं are able to survive. वो इस काबिल हो जाती हैं, वो survive कर जाती हैं कहाँ पे? For about 6 months. तकरीबन 6 माह without food. खाना खाए बगैर तो 6 माह क्या करती हैं? Survive कर जाती हैं. मैंने कहा 2 statements पढ़ा करें पहले. It was found that the bones of the female bear were very weak when they came out of their dens in spring. जब वो स्प्रिंग में अपने डेंस से बाहर आती हैं, अपने गार से बाहर आती हैं, तो कहते हैं उनकी हड्डियां जो होती हैं बहुत वीक हो चुकी होती हैं. देखते हैं क्या कहते हैं पैराग्राफ. थर्ड पैराग्राफ है
फीमेल पोलर बेयर से स्टार्ट कीजिए। हाउएवर अंडरगो एक्सट्रीम कंडीशन ड्यूरिंग एवरी, एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है एवरी प्रेगनेंसी में। वो कहते हैं वंस ऑटम कम्स, जब ऑटम आता है, ऑटम किस मंथ में आता है? ऑटम अक्टूबर में आता है ना, अक्टूबर नवंबर, ये जो है वो ऑटम मंथ्स हैं हमारे। When autumn comes around, these females will dig maternity dens, ये अपने लिए maternity dens क्रिएट करती हैं, अपना गार अपने लिए बनाती हैं in the snow, बर्फ में, and will remain there throughout the winter, और सारा विंटर वहाँ रहती हैं। ऑटम हुआ अक्टूबर से स्टार्ट, विंटर आ गया, विंटर चलेगा हमारा फेब तक। उसके बाद आ गया बोथ आफ्टर एंड बिफोर द बर्थ ऑफ देयर कब्स, ठीक है, वो अपने बच्चों की पैदाइश से पहले वहाँ पे रखती हैं। अब ये अंदर दी हुई है अक्टूबर से उस डेंस में। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन अबाउट 6 months ऑफ फास्टिंग, ये 6 माह की फास्टिंग का प्रोसेस है। where the female bears have to keep themselves and their cubs alive, depleting their own calcium and calories reserves, अपनी कैल्शियम और अपने ही कैलोरीज के रिजर्व्स को यूटिलाइज करती हैं। तो 6 माह रहती हैं, कब तक? मार्च तक वो रहती हैं। अक्टूबर में गई, मार्च में बाहर आती है। मार्च का महीना किसका मंथ कहलाता है? स्प्रिंग। तो हमें पीछे पता चल रहा है female polar bears are able to survive about 6 months without food। 6 माह रहती है ना, स्प्रिंग तक रहती है ना। Yes। तो ये है हमारी स्टेटमेंट ट्रू। अगला कहता है कि जब वो बाहर आती है ना 6 माह बाद, उनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी होती हैं, लेकिन लास्ट लाइन हमें बता रही है डिस्पाइट दिस, 6 माह की फास्टिंग के बावजूद अपनी कैल्शियम इस्तेमाल की, अपने कैलोरीज के रिजर्व्स को इस्तेमाल किया। दिस देयर बोन्स रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड डेंस, उनकी हड्डियां मजबूत और स्ट्रॉन्ग ही रहती हैं 6 माह की फास्टिंग के बावजूद। False। Yes, the statement is false. The last question, true false में जो है वो क्या कहता है? The polar bears mechanisms for increasing bone density could also be used by people one day. एक दिन ऐसा आएगा जब हम उनका जो मैकेनिज्म है ना पोलर बेयर का बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने का, वो ह्यूमन बींग्स के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन है hibernating brown bear do not have the capacity and must therefore resort to major bone reformations in the following spring if the mechanism of the bone remodeling in polar bear can be understood। अगर वो इस्तेमाल कर लिया, ये समझ लिया जाता है ना, उनका मैकेनिज्म जो है, उनकी हड्डियों का जो मैकेनिज्म है समझ लिया जाता है ना, तो कहता है मे बी bedridden humans and even astronauts could potentially benefit। तो जो इंसान जिसको बेड रेस्ट पे डाल दिया गया है, जिसको बेड रेस्ट पे कह दिया गया है, उसकी बॉन्ड्स इतनी वीक हो गई हैं, कहता है ये उनके लिए और एस्ट्रोनॉट्स के लिए इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर समझ में आ जाए, कंडीशन उसने पुट किया, अगर समझ में आ जाता है तो ये उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्यूचर पॉसिबिलिटी। सो द क्वेश्चन इज Not true है। जैसे कहता है द पोलर बेयर्स मैकेनिज्म फॉर इंक्रीजिंग बोन डेंसिटी कुड आल्सो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर समझ आ जाए। क्वेश्चन भी यही कह रहा है और मैं पैसेज भी यही कह रहा है।